नमस्ते सभी को, शुभ प्रभातम। आज हमारे साथ है डॉक्टर जेकब वडकचेरी केरला से। वो एआईएम से जुड़े हैं पिछले 2 साल से और हमारे एआईएम के स्पेशल एडवाइज़र भी हैं। और उनके साथ आज डॉक्टर अभय चेडा है जो एआईएम के एनएससी मेंबर है। और डॉक्टर अभय चेडा डॉक्टर जेकब से बहुत ही अहम सवाल आज पूछेंगे आज के टॉपिक पे, जो हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्व रखता है। तो शुरू करते हैं डॉक्टर अभय। यस, थैंक यू डॉक्टर पटेल। एक जो है पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और पैराडॉक्सिकली ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डे कॉइन किया है। और अगर हम गो थ्रू करेंगे इसके फंडामेंटल्स को, तो फंडामेंटल्स तो बहुत बढ़िया है, लेकिन WHO की जो पैराडॉक्सिकल एक्टिविटी होती है ये बिल्कुल उससे उल्टी होती है। सो पेशेंट सेफ्टी के नाम पे वो मास्क पहनाएंगे या वैक्सीन देंगे, तो वो बिल्कुल ही पैराडॉक्सिकल एक्टिविटी है। अच्छा, दूसरा, फुल इन्फॉर्म्ड कंसेंट पेपर पे ही है, लेकिन इन रियलिटी कुछ भी नहीं होता है। और सो आज का हमारा जो टॉपिक है, फुल इन्फॉर्म्ड कंसेंट से ही पेशेंट को अपनी सेफ्टी या क्या हार्म है वो पता चलेगा। सो डॉक्टर जेकब बहुत ही सीनियर नेचुरोपैथ है। इनफैक्ट नेचुरोपैथ के नाते ये पेशेंट सेफ्टी डे के लिए वो खास निमंत्रित किए गए हैं, और नेचुरोपैथ के अलावा और कोई पेशेंट सेफ्टी दे भी नहीं सकता है। तो और इतने बड़े सीनियर नेचुरोपैथ हैं जिनकी चेन ऑफ सेंटर्स हैं केरला में, और बहुत सालों से काम कर रहे हैं, ब्रेक थ्रू वर्क कर रहे हैं, ब्रेक थ्रू स्टडीज है। तो मैं डॉक्टर जेकब को इनवाइट करता हूं कि ऊपर कुछ कहिए, और जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट इसके ऊपर भी कुछ कहिए। सो डॉक्टर जेकब बोलेंगे, मैं बीच में कुछ इंटरव्यू करके ट्रांसलेशन करके दूंगा हिंदी में। मोस्ट ऑफ तो लैंग्वेज सिंपल है, समझ में आ जाएगी। यस। सभी साथियों को मुझे ये बताना है कि डॉक्टर जेकब केरला से हैं, तो उनको अच्छा हिंदी नहीं आता है, तो वो ज़्यादा इंग्लिश में बात करेंगे और कुछ जो अहम बातें हैं डॉक्टर अभय आपको ट्रांसलेट करके क्लियर कर देंगे हिंदी में। यस डॉक्टर जेकब, you can start the session. So much. Thank you. So you all know we have a great healthcare system, not only in India, all over the world, mainly governed by allopathic sector. There are pharmaceutical companies, hundreds of pharmaceutical companies, then lakhs and lakhs of well-trained doctors, MBBS, MD. In India, there are more than 9 lakhs of allopathic doctors. Little more than that, we have Ayurveda, Homeo, Siddha, Unani, Naturopathy doctors. Then the healthcare system is very strong. We have health department, central health department, state level health departments, district level DMO, district medical officer, hospitals, huge hospitals, the biggest buildings everywhere in the country, not textile shops, diamond shop or jewelry shops. It's a hospital, the biggest business centers all over the country.
many millions of nurses, assistants, and the hospital setup is very strong. So in September 2019, World Health Organization declared September 17th as Patient Safety Day. It actually happens in the 72nd World Health Assembly. Assembly had a resolution to declare a Patient Safety Day. Why? If a factory declares workers' safety day, we can understand. If the country declares citizens' safety day, that also we can understand. When the hospital people asked to observe Patient Safety Day, it's very strange. Actually, from 2016, World Health Organization started to conduct patient safety meetings by the health experts, health ministers, but it all went fruitless. That's why they declared to observe Patient Safety Day. The main slogan of that declaration: no one should be harmed in healthcare. No one should be harmed in healthcare. Actually, healthcare to heal, correct all the problems, all the harms they have to cure. But this was the slogan: no one should be harmed in healthcare. And yet, if you go to the website of World Health Organization, World Patient Safety Day, 17 September 2019, 134 million adverse events occurs each year due to unsafe care in hospitals in low and middle income countries, contributing to 2.6 million deaths annually. It's very shocking. Up to this time, World Health Organization also tried to cover up. They kept it as secret. But their efforts failed. That's why they declared it openly. 134 million, that means 1,340 lakhs of people get medical error from the hospital. Out of that, 26 lakhs people die just because of the treatment, just because of the health care, just because of the faulty health care. 15% of hospital expenses can be attributed to treating patient safety features in OECD countries. Actually, it will come more than 50% of the hospital expenses just because of the medical error, diagnostic mistakes, prescription mistakes, then medication mistakes, surgical mistakes. 4 out of 10, I'm reading it from the World Health Organization's website. 4 out of 10 patients are harmed in the primary and ambulatory settings. Up to 80% of harm in these settings can be avoided.
So we'll see Global Patient Safety Action Plan declared by the World Health Organization. From 2021 to 2030. So they have a very concrete safety action plan. Overview. Patient safety is fundamental to the provision of healthcare in all settings. However, avoidable adverse events, errors, and risks associated with healthcare remain major challenges for patient safety globally. The Global Action Plan was adopted by 74th World Health Assembly in 2021 with a vision of a world in which no one is harmed in healthcare and every patient receives safe and respectful care every time, everywhere. So they are going to correct it by the end of 2030. Up to that time, they are so sure it will continue. Then patient safety key factors. Again, we see it from the website of World Health Organization. The occurrence of adverse events due to unsafe care is likely one of the 10 leading causes of death and disability in the world. The 10th leading cause. But my opinion, my observations, it will come the first leading cause. Anyway, we will follow whatever World Health Organization says. In high-income countries, it is estimated that 1 in every 10 patients is harmed. In high-income countries, it is estimated that 1 in every 10 patients is harmed while receiving hospital care, not ambulatory care, hospital care. The harm can be caused by a range of adverse events, with nearly 50% of them being preventable. Just 50% of them being preventable. So they will make at any cost, anyway, 50% of harm. So if you go to a hospital, 2 out of 10 will definitely get medical error, even though their effort, their action plan gets succeed. This makes hospitals a place of terror. Then each year, 134 million adverse effects occurs in hospital in low and middle income countries due to unsafe care. Resulting in 2.6 million deaths, 26 lakh deaths. Another study has estimated that around 2/3 of all adverse events resulting from unsafe care and the years lost to disability and death, bracketed, known as disability adjusted life years or dailies, occur in LMICs, lower middle income class countries. Globally, as many as 4 in 10 patients are harmed in primary and outpatient healthcare. Up to 80% of harm is preventable. 20 is allowed. It's from the primary and outpatient healthcare sector. The most detrimental errors are related to diagnosis, prescription, and the use of medicine. In OECD countries,
50% of total hospital activity and expenditure is a direct result of adverse events. So what is adverse event? When an adverse effect happens to a patient after medication, surgery, or the hospital care, that is adverse event. Dr. Jacob, could you let me know when you can take a pause, because then Dr. Abhay Cheda will translate or summarize what you have said so far. Please, Dr. Abhay, please. Right now, please do it. Yeah. So, डॉक्टर जैकब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि ये जो पेशेंट सेफ्टी डे है, और अगर ये हॉस्पिटल ये सब बोर्ड लगाता है तो बहुत ही पैराडॉक्सिकल है, बहुत अपोजिट है। बहुत सारी पेशेंट जो है अनसेफ पोजीशन में पहुंच जाते हैं बिकॉज ऑफ इनके मेडिकेशन या इनकी टेक्निक से, इनकी इन्वेस्टिगेशन से वो अनसेफ हो जाते हैं। और यही लोग जो है पेशेंट सेफ्टी का अगर बैनर लगाएंगे तो बहुत ही अपोजिट होता है। तो डॉक्टर जेकब ने स्टैटिस्टिक्स दिया कि कितने लोग दवाई से नुकसान होता है, डेथ भी होती है, और कितने लोगों को 340 lakhs। बहुत ही बड़ा फिगर है, ह्यूज फिगर है। ऐसे नहीं कि भाई थोड़े जन है, ह्यूज फिगर है। पेशेंट्स को बीमारियां होती हैं दवाइयों से, छोटी बीमारी में से बड़ी बीमारी पैदा होती है। जैसे कि एसिडिटी की दवाई ली आपने, पेंडी और पेंटाप्राजोल, तो एसिडिटी की दवाई एसिडिटी रिड्यूस करेगी लेकिन किडनी डैमेज पैदा करेगी। तो ये जो है पेशेंट की सेफ्टी के विपरीत है। वैसे भी बहुत सारे डेथ होते हैं बिकॉज ऑफ मेडिकेशन, डेथ, स्ट्रेट डेथ। एक किताब भी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की है, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। तो रे स्ट्रैंड का एक किताब है, पहले यूएसए में पब्लिश हुआ था, उसको किसी ने भी लीगली चैलेंज नहीं किया था, और बाद में इंडिया में आया है। तो डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, डेथ बाय बीमारी नहीं, मृत्यु बाय बीमारी नहीं, मृत्यु बाय दवाइयां, प्रिस्क्रिप्शन। तो ये जो डोमिनेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है एलोपैथिक, उसकी इतनी सारी इश्यूज है। तो ये हॉस्पिटल अगर पेशेंट सेफ्टी पोस्ट कहते हैं तो इनके पीछे इनका दूसरा मकसद ही रहता है कि पेशेंट को डराओ और कोई भी दवाई ठूस दो अंदर, पेशेंट को डराओ और मास्क लगवाने पे मजबूर करो, पेशेंट को डराओ और वैक्सीन लगवाने पे मजबूर करो। तो ये जस्ट अपोजिट टॉक है। तो WHO का ये एक सिलसिला रहा है कि, और इवन अगर हम बिल गेट्स जो है और ऐसे दूसरे फार्मा माफियाज है जो इनको फंडिंग करते हैं, तो अगर ये कहते हैं इनफर्टिलिटी सर्विस, बिल गेट कहते हैं इनफर्टिलिटी सर्विस मतलब इनफर्टाइल कपल के लिए सर्विस नहीं, लोगों को इनफर्टाइल कैसे बनाने का, वो इनका कहना है, इनफर्टिलिटी सर्विस, फर्टिलिटी सर्विस। सो व्हेन दे से फर्टिलिटी सर्विस, इट इज इनफर्टिलिटी सर्विस, इन लोगों को इनफर्टाइल कैसे बनाना। और पब्लिक सेफ्टी मतलब लोगों को ऐसे मारना, पॉपुलेशन रिडक्शन। सो जस्ट ऑपोजिट टॉक है इनका। जो एक गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च है, मतलब वायरस के ऊपर क्रियाक्रम करो कि उसे उसको और घातक करो, उसको उनका नाम दिया है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, मतलब पूरी उलटबाजी है। तो ऐसे ही डॉक्टर जैकब डिस्क्राइब करते हैं आगे कि क्या क्या परसेंटेज का नुकसान होता है दवाइयों से, मेडिकेशन से। अभय जी, डॉक्टर जी, may I repeat the key factors again? Then you can translate it. Okay, sure. Each year, 1,340 lakhs adverse events occurs in hospitals. Okay. Please. हर एक साल 1,340 लाख एडवर्स रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, ये तो रिपोर्टेड है, कितने तो अनरिपोर्टेड होंगे। Is resulting
in 26 lakhs deaths annually. Oh, 26 lakhs डेथ सालाना एडवर्स रिएक्शन से होते हैं. 26 लाख डेथ एडवर्स रिएक्शन से होते हैं सालाना. इसमें दवाइयां खास है और प्रोसीजर्स खास है जो अवॉइड कर सकते थे. यस. So that's why World Health Organization declared Patient Safety Day. इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पेशेंट सेफ्टी डे डिक्लेयर किया. ये तो एकदम ही ऑपोजिट है, क्योंकि वही दवाइयां, वैक्सीन, ये सब पुश करता है, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन पुश करता है और यही सेफ्टी की बात करता है. ये पब्लिक को एक आई उल्लू बनाने के तरीके हैं. The theme was the first World Patient Safety Day, September 17th. The theme was patient safety, a global health priority. Please, Dr. Ji. या तो पहला जो थीम था ये वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे का, कि पेशेंट सेफ्टी ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी, मतलब पूरे दुनिया की हेल्थ प्रायोरिटी है पेशेंट सेफ्टी. वैसा फर्स्ट थीम था ये पेशेंट सेफ्टी डे का. Slogan was "Speak up for patient safety." That was the slogan. कि पेशेंट सेफ्टी के लिए बोलो, पेशेंट सेफ्टी के लिए आवाज उठाओ. And 2020, the theme was just shifted from the patient to health worker. Theme was health worker safety, a priority for patient safety. Quite strange. 2020 में एम्फेसिस शिफ्ट हो गया, पेशेंट सेफ्टी से वो बदल के हो गया हेल्थ वर्कर सेफ्टी. और पेशेंट ने प्लीज यस स्लोगन was सेफ हेल्थ वर्कर सेफ पेशेंट. स्लोगन ऐसे बनाया कि अगर हेल्थ वर्कर सेफ है तो पेशेंट सेफ है. तो मतलब वही नैरेटिव है मास्क का, वैक्सीन का, कि मतलब मास्क बिना आप घूम नहीं सकते, वैक्सीन बिना आप इधर उधर जा नहीं सकते. बस वही बात है. मतलब एक आई वॉश है, उल्टा बात करके घातक चीजें घुसाना, घातक प्रैक्टिसेस का फैलाव करना. And 2021 the slogan, the theme was "Act Now for Safe and Respectful Childbirth." 2021 में जो थीम रहा वर्ल्ड सेफ्टी डे का, पेशेंट सेफ्टी डे का, एक्ट नाउ फॉर सेफ चाइल्ड बर्थ. Safe and respectful childbirth. सेफ एंड रिस्पेक्टफुल चाइल्ड बर्थ. मतलब जो पहले बहुत सहज तरीके से घर में जो डिलीवरियां होती थी उसको बंद करके सबको हॉस्पिटल के नाद पे लगा देना, और हॉस्पिटल के नाद पे लगाए मतलब सिजेरियन का सिलसिला चालू कर देना. तो जो बहुत ही सहज प्रक्रिया थी उसको इतनी डरावनी बना देना ताकि घर में डिलीवरी करना मतलब एकदम अनसेफ है, ये सबके मन में फिट बैठ ही गया. और हॉस्पिटल के ही आप मोहताज हो जाओगे और उसके बिना आपका माइंड चलेगा ही नहीं, आपका बॉडी भी चलेगा नहीं. और वहां गए कि उनको सिजेरियन 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 मतलब बिल बनाना, वो बात पे पहुंच जाता है. हाँ जी, 2021 थीम हो गया. डॉक्टर जेकब. तो हम रुकेंगे क्योंकि शायद डॉक्टर जेकब को एक फोन कॉल या कुछ आ गया है, वो जरूर वापस आएंगे. हाँ. और हाँ, ये मैं वही बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मन में सब बसा हुआ है टेक्निक्स, ऑटोमेटिक्स, ऑटो सजेशन जो होता है, उनका वो यूज करते हैं. तो आप लोग सब जानते हैं फ्लाइट्स में वो कहा जाता है कि अगर ऑक्सीजन मास्क गिरे
तो पहले आप मास्क अपने बच्चों पे मत डालो, अब आपके खुद पे डालो, क्योंकि आपको ऑक्सीजन पहले मिलेगा तो आपका दिमाग और हाथ पैर सब ठीक चलेगा, उसके बाद आपको ऑक्सीजन अपने बच्चों पे डालना है। तो यही वो हमारे सब प्रोग्रामिंग को यूज कर रहे हैं। और अभी ऐसा हो गया है कि पहला सेफ्टी हेल्थ वर्कर का और उसके बाद सेफ्टी पेशेंट का। साइकोलॉजिकल प्रोग्राम रोज हैमरिंग कर करके होते ही रहा है। अभी तो प्रैक्टिकली डिलीवरी की तो ऐसी हालत हो गई है कि कोई भी व्यक्ति घर पे डिलीवरी करने का सोच ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल हो गया, उसका माइंड ही नहीं चलेगा, उसमें ऐसा ताकत ही नहीं रहेगा, अंदर डर ही डर रहेगा कि नहीं डिलीवरी मतलब हॉस्पिटल में ही करना पड़ेगा। हालांकि कुछ अरसे पहले सभी डिलीवरियां घर पे ही होती थी और मेजोरिटी सब ठीक ही रहते थे। यहाँ हॉस्पिटल में आप आए और बाद में सिजेरियन ही सिजेरियन है, सिजेरियन कभी रुक सकता है जब भी आप नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस बढ़ा देंगे और सिजेरियन के चार्जेस कम हो जाएंगे बाय लॉ, तो सिजेरियन कम हो जाएंगे। और जो लेबर के पेन का भी इतना डिस्क्रिप्शन बता देते हैं, फैलाते हैं, और पेशेंट भी एक दूसरे के साथ फैलाते हैं कि जो इतनी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है वो पेनफुल बन गई। तो ये एक हुआ साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। और एक बार आप हॉस्पिटल में गए, डिलीवरी उधर हुई, तो फिर वैक्सीन लगाना सिलसिला चालू हो गया डे 1 से। बच्चा कुछ जानता नहीं और कोई आके कुछ करके उसको कुछ इंजेक्शन की सुई घुसा देगा उसकी बॉडी में और वहां से ही वो उसका बीमार होने का सिलसिला चालू हो जाएगा। और ऐसे सिलसिला चालू होगा कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये इंजेक्शन से, ये वैक्सीन जो अंदर ठोकी है सो कॉल्ड वैक्सीन, उससे बीमार हो गया बच्चा, पता भी नहीं चलेगा। इतनी हद तक पेशेंट अंधेरे में रहता है और उसके रिलेटिव अंधेरे में रहते हैं। तो बहुत सारी किताबें मैंने शेयर की है टेलीग्राम ग्रुप में। डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन जो है 270 पेजेस का किताब है, मतलब दवाइयों से डेथ। और यही दवाइयां देने वाले लोग पेशेंट सेफ्टी की बात करेंगे तो बहुत ही स्ट्रेंज है समवेयर। आई थिंक आप डेरिल जी यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस रख सकते हैं हम, अगर जब तक इनमें कोई संदेह है तो। अभी 2022 का जो स्लोगन था पेशेंट सेफ्टी के लिए, नो हार्म, मतलब बातें नैरेटिव तो अच्छे अच्छे होते हैं लेकिन एक्शन उल्टा ही होता है। कृति में तो पूरा एक्शन उल्टा ही होता है, क्योंकि इनके फंडिंग करने वाले जो है वो बिजनेस ग्रुप है, और बिजनेस ग्रुप प्रॉफिट के बिना, प्रॉफिट मोटिव के बिना वो कोई एक्शन लेता ही नहीं है, और खुद की चाहो जलाली के ही वो एक्शन करता है। सो ये WHO कितना भी कुछ करे, जब तक इनके फंडर्स एक बिजनेस ग्रुप रहेंगे तो ये पेंटेड बॉडी रहेगा, कुछ भी करो। तो अगर WHO को निष्पक्ष रहना है तो पूरे ये फंडिंग्स फार्मा से बंद होने चाहिए, तो ही ये निष्पक्ष हो सकता है। अगर इनकी फंडिंग ऑफिशियली फार्मा देती है तो इनके ऑफिशियली ये लायबल बंधवा हो जाते हैं। तो इवन ये पेशेंट सेफ्टी डे WHO कॉइन करे वो भी गलत है। यस, डॉक्टर जैकब हैज कम बैक। Yes. Sorry. My phone was overheated and disconnected. So, World Patient Safety Day, the theme of 2021, act now for safe and respectful childbirth. That means the childbirths in the hospitals were not safe. World Health Organization points out or admits that it is not at all safe the way we think or we thought. And why the word respectful childbirth? There is no respect to the pregnant ladies.
newborn babies in the hospital. There are many experiences. The testimonials of ladies that they will be suffer absurd languages, dealings without any care. So that's why World Health Organization insists safe and respectful childbirth. Every day, 810 women die from preventable causes of related to pregnancy and childbirth. 810 women die due to the healthcare defaults. 6,700 newborn under 5. All the deaths, that means 47% each year. 20 lakhs babies are stillborn every year. 6,700 newborns die under 5th year every day. 20 lakhs babies are stillborn every year. 40% of this happens during the delivery. That's why World Health Organization insisted to observe safe delivery, safe and respectful childbirth. Then Patient Safety Day 2022. Theme: medication safety. Slogan: medication without harm. Do you think it's possible? Abhayji, please translate. Yeah. See, basically, the whole thing is the whole pattern of thinking. Health comes from medicine, and patient means medicine. Medicine means patient. डॉक्टर अभय, अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा होगा. तो ये जो एक बात है कि दवाइयाँ जो प्रेग्नेंट लेडी को और डिलीवरी के टाइम पे और प्रेगनेंसी के टाइम पे दवाइयाँ इतने इंजेक्शन ठूसे जाते हैं, उससे उसको भी नुकसान हो सकता है और अंदर जो बच्चा है उसको भी नुकसान हो सकता है, इवन अंदर ही डेथ हो सकता है. और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो डॉक्टर जेकब ने फिगर बताई, लेकिन ये कोई भी ऐसा नहीं कहता है कि ये दवाई से हुआ है, इससे हुआ है, और उसको एक्सेप्ट कर लेते. और ये भारत में तो खास एक्सेप्ट करते, कोई पूछने वाला ही नहीं कि भाई क्यों हुआ मुझे. तो ये सब अगर देखिए, जो शब्द डॉक्टर है या वैद्य शब्द है, उसका मतलब है टू टीच, मतलब पेशेंट को सिखाना है कि उसको कैसे जीना है और क्यों जीना है और कैसे जीना है. अगर सिर्फ इतनी बात ही कही, उससे ही पेशेंट सेफ रह सकता है. और उसके बिना, उसके अलावा अगर कोई दवाई की ठूसाठासी की तो बीमारियां ही बीमारियां पैदा होगी. जैसे समय के पहले मृत्यु होगा, ये सब. तो जो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन सर विलियम ओसलर का मैंने कोट भेजा है, वो कैनेडियन फिजिशियन थे और उन्होंने बहुत सारे ब्रेक थ्रू वर्क किए मेडिकल फील्ड में. तो उनका एक स्लोगन है, one of the first duties of the physician is to educate patients not to take medicine. मतलब इनका कहना है कि डॉक्टर का पहला ड्यूटी है पेशेंट को समझाना कि दवाइयां मत लो. और दूसरा इनका कोट है कि जो दवाइयां, जो एलोपैथिक दवाइयां ये सब लेता है, उसको डबल काम है. एक उसकी नेचुरल बीमारी को ओवरकम करना, और दूसरा ये दवाइयों के कारण हुई बीमारियों को ओवरकम करना. मतलब उसको दोहरा काम हो गया. अभी ये तो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन का कहना है, लेकिन बाहर प्रैक्टिस में आप क्या देखते हो कि बीपी की दवाई है, लाइफ लॉन्ग खाओ. कि डायबिटीज की दवाई है, लाइफ लॉन्ग खाओ.
जो भी दवाई लाइफ लॉन्ग खाओ, लाइफ लॉन्ग, लाइफ सेंटेंस। इवन अच्छी बात है कि वो नहीं कहते कि मरने के बाद भी खिलाओ। सो मच, इतना दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंस है। डॉक्टर अपना Dr. G, हाँ जी, will you please continue after 10 or 15 minutes, because I have to give my class. Around 200 Yeah. people are waiting in my hospital. Yes. Okay. So I'll finish my part in the within little time. Would you want me to translate some of your figures? But I want you to translate it in Hindi. I'll stop. So medication safety, medication without harm. That was the slogan and theme for last year. Impossible, literally impossible. You cannot use English medicine without harming your own body, your own liver, kidney, blood, heart, brain, because it's all derived from petrochemical waste of Rockefeller. So the side effects, the interactions with other chemicals, interaction with food, interaction with the lab reports, it's impossible to practice medication without harm. Please, Dr. G. So, to practice यानी जो प्रिस्क्रिप्शन, जितने भी एलोपैथी प्रिस्क्रिप्शन है, सब मेजॉरिटी ऑफ देम कुछ ना कुछ उनकी नुकसान है ही। तो ये दवाई देना और हम कहें कि भाई सेफ रहो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये खुद में एक विपरीत बात है, पैराडॉक्स है, इनेट पैराडॉक्स है। तो जो इनफैक्ट जो डॉक्टर, जो हाईली लर्नेड डॉक्टर होते हैं एलोपैथी के, वो कम से कम दवाई देते ही नहीं है, सिर्फ सलाह सूचन करते हैं कैसे लाइफ जीने का, कहाँ इनका इश्यूज आ रहा है वो बताते हैं और उतना ही करेक्शन कर लेते हैं और उससे पेशेंट ठीक होने लगता है। पेशेंट में तो बहुत कैपेसिटी खुद को ठीक करने की, लेकिन अगर मेडिकल फील्ड वाले बताए कि भाई हमारी दवाई बिना तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है और ऐसे करके दवाई ठूसे, तो उनसे ही नुकसान होने लगता है। यस डॉक्टर। यस। ओके, so World Health Organization recognized that. Now they admit that. That's why the slogan for World Patient Safety Day 2023, that means within a month, September 17th, the new theme, engaging patients for patient safety. Engaging patients for patient safety is your own duty. We decide the drug, we give you drug, we give you health care, but safety, you have to take responsibility. It's your own responsibility. We failed to correct this system. We failed to correct our mistakes. We will continue that because we are dealing with poisonous chemicals and knife and other weapons. We are doing a war with the disease. या तो अभी जो 2023 सितंबर 17 का जो थीम है पेशेंट सेफ्टी डे के लिए, कि पेशेंट ने, उसके केयर टेकर्स ने ही पूरा सेफ्टी वातावरण बनाना चाहिए, पेशेंट सेफ्टी का और सेफ हेल्थ का वातावरण बनाना चाहिए। मतलब जो ओनस है, दवाइयों पे ओनस है, वो जो है अभी भी खुलेआम बोल नहीं रहे हैं, लेकिन पूरा जो दोष का जो टोपला हम बोलते हैं, दोष पूरा डाल रहे हैं पेशेंट के ऊपर। दवाइयों के ऊपर तो बिल्कुल, दवाइयों को तो बचा के ही रखते हैं कुछ भी करके, तो दवाइयां उनका ब्रेड बटर और मलाई का ही जरिया हो गया है। आप पेशेंट को ज्यादा बीमार करो और ज्यादा दवाइयां बेचो, ज्यादा बीमार करो और ज्यादा दवाइयां बेचो, तो इससे तो सेफ्टी आएगा ही नहीं। सिर्फ पेशेंट ने जानकारी लेना चाहिए कि मेरा सेफ्टी कहाँ है, दवाइयों से दूर रहने में मेरा सेफ्टी है। बेफिजूल दवाइयां लेके मैं खुद को ज्यादा बीमार कर रहा हूँ, वो पेशेंट ने जानना चाहिए। यस डॉक्टर शेखर। So slogan, elevate the voice of patients. Elevate the voice of patients. Actually, it's
give all the responsibility on the head of on patients. So government structures, health care officials, everybody are safe. If something happens, adverse reaction, death of a, it's their responsibility, not our responsibility. So in this juncture, we have to act. What could be done? Our health department, IMA, other officials, media, they close their eyes towards this World Health Organization's call. Why? You cannot expect them to promote, them to observe this day. So it's our responsibility to announce it, to teach people, awake them. So what can be done? That's our question. Please, Doctor. So ये जो अभी का जो नैरेटिव है, तो नैरेटिव ही कहेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का और पेशेंट सेफ्टी डे 2023 के लिए, engaging patients for patient safety in recognition of crucial role patients, families and caregivers play in the safety of healthcare. मतलब पेशेंट को ही पेशेंट के सेफ्टी के लिए एंगेज करो, मतलब पूरा जो ओनर्स है दवाइयों से हटा के पेशेंट पे ही डाल दिया गया है. तो अगर ये सिचुएशन है तो अभी हमें क्या करना है ये हमें डिसाइड करना चाहिए. तो डॉक्टर जैकब कहेंगे अभी हमें क्या करना चाहिए. In this situation, I would like you to have some more details, very important, crucial factors of modern medical science. It's not at all modern, not at all medical, not at all science. 12,000 deaths every year from unnecessary surgery. Please, Dr. G. हाँ जी. सो डॉक्टर जैकब ने कहा कि हम जो मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं ना, ये मॉडर्न है ना, मेडिकल है ना, साइंस है. और कितने सारे डेथ्स होते हैं सर जी, एक फिगर आपने बताया है 12,000 deaths every year from unnecessary surgery. 12,000 12,000 डेथ होते हैं अननेसेसरी सर्जरी से. तो ये ना मॉडर्न है, ना मेडिकल है, ना साइंस है. इनफैक्ट ये एक बिजनेस है और एक डर्टी बिजनेस है, अनएथिकल बिजनेस है. अच्छा, It's not from India, it's from America, the news. हाँ, और ये न्यूज अमेरिका है, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, एडवांस कंट्री. और इंडिया के तो बहुत सारे केसेस तो रिकॉर्ड ही नहीं होते हैं. भगवान की इच्छा, अल्लाह की इच्छा मान के उसको खत्म कर देते हैं, फिनिश. इधर कोई रिकॉर्ड ही नहीं बनता. इतना रिकॉर्ड बहुत कम से कम बनता है. यस सर. Is United States health really the best in the world? This is an article published by American Medical Association's journal, JAMA. Please. सो जामा करके एक मेडिकल जर्नल है, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन. तो उनका एक आर्टिकल है कि क्या अमेरिका की हेल्थ केयर सिस्टम बेस्ट है क्या. मतलब उसने एक सवाल उठाया है अमेरिका की हेल्थ केयर सिस्टम की क्वालिटी के ऊपर. अच्छा, 7,000 deaths every year from medication error in hospitals. 7,000 डेथ होते हैं मेडिकल एरर से हॉस्पिटल के अंदर एनुअली. This America. article written by a medical doctor, Dr. Barbara Starfield. ओके, सो ये मेडिकल डॉक्टर ने ये आर्टिकल लिखा है, डॉक्टर बारबरा स्टैफील्ड. 20,000 deaths every year from other errors in hospitals. 20,000 डेथ होते हैं हॉस्पिटल में फ्रॉम अदर कॉजेस, अदर दूसरे कॉजेस से. या If you want to go to the site, JAMA, JAMA, जामा
26 July 2000. 8,000 deaths each year from nosocomial infections in hospital. कितना 2000 deaths every year from hospital related infection, जिसको nosocomial infection. 80,000 deaths. How many? 80,000. 80,000 deaths जो है हॉस्पिटल में से उत्पन्न हुए इन्फेक्शन के कारण. अगर कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको एक डेंजर होता है नोसोकोमियल इन्फेक्शन, मतलब वहां के जो रेजिस्टेंट जर्म्स है उससे उसको इन्फेक्शन होके उनकी जो दवाइयां हैं उन पर कारगर ना करके उनका डेथ होता है. इसको नोसोकोमियल इन्फेक्शन डेथ. Actually, it's utter nonsense. No germs are capable to kill us or make us sick. It's the condition of our body is worse or dirty that attracts the germs. Germs are not the primary cause of our health issues. So it also happens due to the unsafe, dangerous drugs. That's Yes. my reading. Please. परफेक्ट. सो ये जो कहते हैं कि जर्म्स बहुत फैल गए इसलिए मर गया, वो भी गलत बात है. इनफैक्ट जर्म से आदमी नहीं मरता है, जो उलट सुलट जो दवाइयां ठूसी जाती हैं शरीर में उससे आदमी मौत के करीब पहुंच जाता है, उससे आदमी मरता है. तो जो जैसे कि अभी वैक्सीन के कारण, कोविड वैक्सीन के कारण लोग मर रहे हैं, लेकिन नाम दिया गया है कोविड इन्फेक्शन का, लॉन्ग कोविड उसको नाम दे दिया गया है. तो जो डेथ उल्टी सुल्टी दवाइयां ठूसने के कारण, ओवर मेडिकेशन के कारण जो डेथ होती है, नाम दिया जाता है इन्फेक्शन बहुत फैल गया बेसिकली. इनफैक्ट जो एड्रेस है जहां जो पेशेंट जहां से बीमार होता है, कॉज को एड्रेस नहीं किया जाता है. कॉज उसकी लाइफस्टाइल में, उसकी मनोस्थिति में है, वो कॉज को एड्रेस किया ही नहीं जाता है. सिर्फ ड्रगिंग दवाई ठूसना. डॉक्टर मतलब दवाई ठूसना, पेशेंट मतलब दवाई ठूसना, बस वही एक दिख रहा है. तो ये फिलोसॉफी खुद घातक है, इससे बाहर आना पड़ेगा. यस डॉक्टर चेक. See, 1,06,000 deaths each year from non-error, not because of any mistake of hospital care or mistakenly given drugs, nothing. 1,06,000 deaths each year from non-error. Adverse effect of medications, carefully prescribed medicines, that also kills patients more than mistakes. Oh. Correctly diagnosed, correctly prescribed, correctly taken drugs, that kills 106,000 people each and every year in America, in American hospitals. Please. तो डॉक्टर चेकअप ये कहते हैं कि ये जो जर्नल आर्टिकल है जामा का, उसमें कहा जाता है कि निदान भी सही है, दवाई भी जैसे किताब में बताया गया वैसी दवाई दी गई है, उसके बावजूद उसके कारण इनफैक्ट 1,06,000 लोग सालाना अमेरिका में मरते हैं करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन से कारण. गलत प्रिस्क्रिप्शन नहीं, करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन, जो किताब में बताया वैसा प्रिस्क्रिप्शन से. तो मतलब ये साइंस कहाँ हुआ, ये मॉडर्न कहाँ हुआ? ये ना ये मॉडर्न रहा, ना मेडिकल रहा, ना साइंस रहा. ये तो एक अंधविश्वास रहा, समवेयर ब्लाइंड फेथ रहा, और जो छलावा है, छलावा ही रहा. अच्छा. These total to 2,200. These total to 2,25,000 deaths per year from iatrogenic causes. मतलब 2 लाख, ये सब कुल मिला के 2,25,000 जन सालाना अमेरिका में डॉक्टर और मेडिसिन और मेडिकल प्रोसीजर के कारण डेथ होते हैं. इसको आइट्रोजेनिक डेथ बोलते हैं, मतलब डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशन इंड्यूस्ड डेथ. Done by myself, iatrogenic. So, this is the situation. And I like you to just go through paracetamol. Paracetamol
may increase the risk of hematological malignancies, cancers that affect the blood, bone marrow, and lymph nodes. If you type paracetamol causes blood cancer, you will get it. डॉक्टर जैकब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है कि पैरासिटामोल जो है ब्लड रिलेटेड कैंसर, लिम्फ नोड रिलेटेड कैंसर, मतलब हेमेटोपोइटिक सिस्टम रिलेटेड कैंसर रिड्यूस करता है। और पैरासिटामोल का इतना चलन है, लोग उसको चॉकलेट की माफिक खाते हैं। बुखार आया सीधा पैरासिटामोल लो, डोलो लो, क्रोसिन लो, मेटासिन लो, ये सब पैरासिटामोल है। लेकिन ये खुद कैंसर प्रोड्यूस करती है। लेकिन ये पॉइजन इतनी अच्छी पैकिंग में आती है, इतनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट से आती है कि लोगों को उसको सस्पेक्ट ही नहीं करते कि इससे मेरे को कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, हेमेटोपोइटिक कैंसर हो सकता है। ब्लड कैंसर, बोन मैरो कैंसर एंड लिम्फ नोड कैंसर। सो ब्लड कैंसर, बोन मैरो कैंसर जहां से ब्लड बनता है, और लिम्फ नोड कैंसर, मतलब ये सब तीनों जो है हेमेटोपोइटिक सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर, इन शॉर्ट पैरासिटामोल से। It is published by examine.com, a scientific site. तो ये जो आप examine.com साइट पे जाएंगे तो आपको ही मिलेगा, examine.com। If you go to National Health Institute, America, National Institute of Health, then you could see paracetamol causes kidney tract cancer and reduces the risk of ovarian cancer. So NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का कहना है कि पैरासिटामोल जो है किडनी कैंसर पैदा करता है, जब ये ओवेरियन कैंसर रिस्क रिड्यूस करता है। बराबर? Now you can understand why the cancer rates are going up and up. तो अभी ये हमको एक लगता है कैंसर का एपिडेमिक कैसे बढ़ गया, एपिडेमिक प्रोपोर्शन पे कैंसर कैसे आ रहा है। तो यही सब रीजन है कि टू मच मेडिकेशन, too much interference with our health. Not too much medication. You may get cancer just with a paracetamol because there is no dose restrictions for. Now nobody can say this is your dose. There is no dose for. There are many medical texts clearly says that you cannot say this is the overdose, this is the dose. Anytime you may get trouble from each and every drug. हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई ये बहुत सी दवाइयां खाई इसलिए हो रहा है। इवन कम से कम दवाई खाई और उस वजह से कोई पेशेंट में ऐसा ट्रिगर हो सकता है। तो मतलब दवाइयां खाने की फिलोसॉफी क्वेश्चन करनी चाहिए अगर सेफ रहना है तो। And if you type drug induced cancer and ask Google Guru common cancer causing drugs, you will get many pages. Common cancer causing drugs. Please be. Okay. So drug induced cancer अगर टाइप करेंगे गूगल में तो आपको कॉमन कैंसर कॉजिंग ड्रग का एक लिस्ट आएगा। Fluoxetine and paracetamol. The two drugs are classified as selective serotonin reuptake inhibitors. It causes cancer. Okay. तो yes, जो सेरोटोनिन इनहिबिटर ड्रग्स हैं वो भी कैंसर प्रोड्यूस करती हैं और एक खास साइकियाट्रिक दी जाती है सेरोटोनिन इनहिबिटर ड्रग्स। Zantac. Zantac is a very popular drug for heartburn, acidity, ranitidine, Rantac. It also causes cancer. तो जो रैनिटिडिन जो जैसे पानी की जैसी दी जाती थी हर एक पेशेंट्स को और अभी भी दी जाती है, वो कैंसर प्रोड्यूस करती है, किडनी कैंसर स्पेशली।
See, the Food and Drug Administration of America noted that one content inside this drug, NDMA, was harmful in large amounts and was still elevating the level of carcinogens in this medication. So FDA का कहना है कि ये जो जेनेटेक के अंदर एक ऐसे कंपोनेंट है जो malignancies बना रहा है large numbers में, right? Jacob sir? According to some researchers, all types of Sandac they had investigated were unstable and should be recalled as soon as possible. So एक रिसर्च के हिसाब से ये जो जितने भी जिनटेक है, जितने भी फॉर्मुलेशंस है जिनटेक वाले, सबको रिकॉल करना चाहिए बिकॉज ये सब भी अनसेफ. Then next tablets, losartan and valsartan. अभी आगे की जो टैबलेट है जो बीपी के लिए दी जाती है, लॉसार्टन और उसकी दूसरी डेरिवेटिव्स, ये तो बहुत ही प्रचलित है भारत में आज. Some blood pressure drugs, these are the wonderful blood lowering drugs, blood pressure lowering drugs. Some blood pressure drugs have been recalled after realizing they contained NDMA. So ये जो बहुत ही अच्छी ब्लड प्रेशर की दवाइयां मानी जाती थी, वो NDMA बीमारी पैदा करने के कारण इनको रिकॉल की गई है. It was established that these two medications contain carcinogens. The Food and Drug Administration recalled losartan in 2019. According to the federal health experts, the drug had unacceptable levels of MDMA. So 2019 में लोसार्टन को रिकॉल कर दी गई थी, लेकिन इंडिया में अभी भी चालू है और ये ज्यादा लेवल जो है एनडीएम का बढ़ाता है. See, it's evidence-based. Evidence-based medicine. Evidence-based what? See, when we get evidence, we ban this drug. Up to that time, those who took that drug, they have to suffer. Almost every week, Food and Drug Administration recalls some drugs, bans some drugs. Poor people, they think they adore hospitals, allopathy drugs. They expect these drugs will cure their disease, the disease which they made inside after taking dirty food, junk food, humans feed. Poor people. Educated fools. Please. So, जो बीमारियां जो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण हुई है, तो लाइफस्टाइल करेक्ट करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, अच्छी थिंकिंग होनी चाहिए. ये सबसे हेल्थ आती है. तो ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल कंटिन्यू करना है और दवाई चूस के हेल्थ लेना है, इसको फूल नहीं तो और क्या कहेंगे. ये लेने वाला भी फूल और देने वाला भी फूल, दोनों फूल कहेंगे. यस. Proton pump inhibitors. These medications are used to treat heartburn and acid reflux. See, if you eat only fruits for 10 days, not even 3 days, you can cure acid reflux and heartburn, acidity. Instead of that, if you go for a wonderful magical remedy drug, Zantac or some type of protein pump inhibitors, you get cancer. Maybe after 5 years, 20 years, 30 years of time. That's the difference. Please. तो ये जो एसिडिटी की दवाइयां हैं या जीआरडी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, जो ऊपर एसिड आता है, उसकी जो दवाइयां हैं, वो दवाइयां कंटिन्यू लेते रहने से आज नहीं तो कल कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है, बीमारियां होती है.
और ये जो एसिड रिफ्लेक्स है वो सिर्फ 3 दिन का फास्टिंग लांघन करने से ही ठीक हो जाती है। एक जो संस्कृत में जो प्रोवर्ब है, लांगनम सर्व रोग नाशनम, तो ये जो उपवास के फायदे वो नेचुरोपैथी में सर्वोपरि कहे जाते हैं, जो बहुत सारी बीमारियां का नाश करती है। तो वो सब माइंड गेम है, माइंड से हम उपवास कर सकते हैं और डिटॉक्स हो सकता है अच्छे से, और ये सब बीमारियां जाती है। इतना सिंपल मेजर छोड़ के हम दवाइयां के नशे में, दवाइयां के चुंगल में घुस गए, डॉक्टर के चुंगल में घुस गए, जो दवाई पूछते हैं उससे बाहर आना पड़ेगा। यस डॉक्टर। So this way you just type drug induced high blood pressure, then you will get steroids, drugs to treat anxiety, ADHD, depression, and other mental health problems. This can include clozapine, olanzapine, quetiapine, and risperidone, all the tablets. Then birth control pills. Not only rise your blood pressure, it causes cancer also. Drugs that treat high blood pressure, such as beta blockers and diuretics. Statin, very dangerous tablets to lower cholesterol. It will damage your brain, liver, kidney, and muscles. Then adrenaline for several allergic reactions. High doses of asthma medication, echinate tablets, tacrolimus. After you get it after organ transplant, all these drugs will increase your blood pressure. Then I'm going a little faster. Then drug-induced liver damage, liver injury. Main culprit is paracetamol. And if you drink cola, coffee, alcohol, it will increase the speed of your liver injury. If you go to a medical text, you can see paracetamol increases the risk of liver damage in chronic alcoholics. So amiodarone, steroids, birth control pills, erythromycin, halothane, methyl dopa, statin drugs, sulfur drugs, tetracycline, amoxicillin, anti-seizure medicines, niacin, vitamin tablets, azathioprine, all these drugs will damage your liver. So you can check drug-induced hypothyroidism, drug-induced lupus, drug-induced Parkinsonian, drug-induced ulcer, drug-induced osteoporosis, drug-induced thyroid dysfunction. You will get all details. So we have to study in detail. Then we have to tell to the people. We have to conduct press conferences, especially 2-3 days before September 17th. We have to tell the truth. We have to teach our journalists. We have to teach our rulers, officials. So that's the first attempt, effort we have to take. So I think I can talk about human feed in another day. This took much more time than I expected, and I'm a bit busy to go back to my class. So if you have any question, I would like to answer some of your questions, please. कोई क्वेश्चन है तो Doctor, yeah, Dr. Jacob, could you finally say also one thing, that at an individual level, this informed consent, should we start activating it for anything prescribed of allopathy to us by our doctors? Should we ask them in writing? Just 1 minute. Just 1 minute. Please, Dr. Dadi. Yes, doctor. So my question was simple, to promote this informed consent,
Yes. should we insist or ask doctors who are giving us certain prescriptions for our, treatment? Should we ask them to give in writing or something the contraindications of their what they are prescribing All us? the Should we safety start this alert. practice with people? Yes, yes, yes. That's our right as a consumer. That's our right to know all the aspects, all the details. In America, in Britain, Australia, they will explain everything. They will take that patience. That's their duty. Actually, it's the duty of a doctor to give all the safety alerts to the patient. But in India, they use just 2 minutes to look at our face, then write before hearing us, before any diagnostic reports. 20% of all the diagnostic reports are fake, negative, false positive or false negative. Even though without examining the patients, they prescribe. So our doctors are doing a criminal practice. Criminal practice. So we So I have to. I will ask another question, and then your reply. I would request Dr. Abhay to translate for the audience. The Please, second yeah. part of my question is that if I suppose the doctor is trying to give me a paracetamol and he says you must have this, then first step is I will ask him, can you please give me in writing the side effects and contraindications of this medicine? Suppose he writes and gives to me. Then the second thing is it says over here that my kidneys may get bad. So if my kidneys get bad, is it your responsibility or the company's responsibility, the pharmaceutical drug manufacturers? Can you speak about that? Whose Okay, responsibility it is? okay, okay. या तो डॉक्टर टेरिल ने कहा है कि अगर डॉक्टर हमें पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम उनसे लिखवाना चाहिए कि भाई इससे कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है तो कोई क्या साइड इफेक्ट है और उसकी जिम्मेदारी पर किसकी, दवाई की, आपकी या किसकी। लेकिन ये तो एक थियरी हो गया समझो। इंडिया में तो आप डॉक्टर की ऐसी सिचुएशन है कि पेशेंट डॉक्टर को सवाल ही नहीं पूछ सकता, इतना डरता है पेशेंट कि वो डॉक्टर को सवाल ही नहीं पूछ पाता है। डॉक्टर सीधा बोलता है डोंट कम हियर, इतना बहुत सवाल पूछते डोंट कम हियर। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। तो यहाँ पेशेंट खुद स्टडी करे, डॉक्टर को पूछना, उसको जागृत करने के लिए पूछना जरूरी भी है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी नहीं हो रहा है। हाँ जी, यस डॉक्टर जैकब। Yes, Dr. Jacob, what is your reply? What would the doctor say in reply? Actually, medical company, pharmaceutical company says we are not at all responsible for the side effects because we are not giving anything. It's given by you, that doctor. It's the responsibility of the doctor to weigh benefit and harm. This is what written in the medical text. Before giving a drug, doctor should weigh harm and benefit. So it's the decision of that doctor. How could we responsible for that decision? We just made these drugs, and the doctor's responsibility to check the patient, the situation, whether the patient take that drug, this food, that type of chemicals, toothpaste, after the toothpaste, that all the responsibility of the doctor. So you cannot actually you cannot. The new health bill, India government, put it in the parliament, and without any discussion they passed it. According to that, medical pharmaceutical company is not at all responsible. You see, then the doctors, then what's the attitude of doctors? In America, doctors already hand over the burden to the pharmacists. We write the drug. It's the duty of the pharmacist to check whether is there any contraindicated, any interactive drugs. Then the pharmacist cut down, correct that prescription. And now the pharmacist also says, we cannot take this burden. That's why World Health Organization shifted the focus, elevate the voice of the patient, engaging patients for patient safety,
So everything is coming on our shoulder. Poor patients. So there is nobody is responsible. Anyway, we can ask the doctor, give a printout. Whenever doctor prescribe a drug, it's easy to give a printout. What should be taken care of? What are the precautions you have to take before this drug taken? So that we can raise one point. And actually we have to keep away from the hospital. Hospitals are for the emergency care only, not to treat disease. You have to treat the cause of the disease, never treat disease. So we have to give this awareness. I talked to Swapna and she said we decided to postpone our naturopathy camp to December, just before the Christmas vacation. So I am ready to teach you how to cure without disease, without drugs, how to live without disease. It's so simple, very easy. Okay? या डॉक्टर जैकब कहते कि मैं वो सिखाने को तैयार है कि भाई डिसीज बिना हेल्दी, दवाई बिना हेल्दी कैसे जाए। और बाकी आई थिंक डॉक्टर जैकब, अगर हमें सबको मौका मिले तो आपके वहां जरूर आएंगे ये सब सीखने के लिए। हेल्थ, डॉक्टर जैकब ने जस्ट बताया कि हेल्दी रहना बहुत आसान है, सिर्फ फ्यू चीजें फॉलो करो, आप हेल्दी रह सकते हैं दवाइयां बिना। ये बहुत बड़ी बात कही है। यस डॉक्टर जैकब, एनीथिंग? Any more questions? या और कोई भी सवाल है तो पूछिए। हाँ, जिसके पास भी सवाल है वो जरा अपना हाथ उठाइए, वो सेंटर का बटन प्रेस के मैं आपको फिर अनम्यूट कर दूंगा। निशा तलरेजा जी, अपना सवाल रखिए। उनके बाद सुषमा रिबेरो। Can I speak? Please. Yes, please. So if someone has taken a lot of paracetamol when they were teenagers and now they are 50 plus, but they have been leading a healthy lifestyle for last 25 years, will they still have the effects of that paracetamol in their body? Yes, there is every possibility for a body to hide the toxic materials somewhere in the body. Definitely some particles will be remained in the liver, and that's when a female asks these questions. Menstruation is a blessing. Most of these chemicals could be washed away with your periods, so the chances of getting accumulation problem is comparatively less among you. Anyhow, you have to cleanse your liver, stop the use of tea and coffee, all the factory food, especially food contains maida, white sugar, and fermented items. Then use more karipata leaf. Take handful of karipata leaf, equal amount of amla, equal amount of coconut, a good amount of ginger, 2 green chili without the seed inside, little bit salt, not iodized salt. You make paste, chutney. Eat it along with your lunch or breakfast.
Once you make the chutney, you have to finish it within 10 minutes. After that, the value of the life value of that food, the healing power of the food, the life power of the food will disappear. So when you cut a fruit, a vegetable, better consume it within 10 minutes, most half an hour. So this chutney is highly effective to eliminate all the toxic materials from your body, from whenever you have allergic reactions, normal allergy. This is a wonderful remedy. Do you want me to repeat? Yeah, I want the items to be repeated, nothing else. Just the items. Handful of karipata leaf. Yeah. Equal amount of amla. Yeah. Equal amount of coconut. Okay. If you don't Fresh get coconut. amla, skip it. Okay. Then a good amount of large piece of ginger. Ginger. Okay. Atharepki you call, then Yeah. 2 green chili. Yeah. Remove the seeds inside. Yeah. Take the skin only. Then normal salt, not iodized Rock salt. salt. Don't use iodized salt. It will damage your thyroid. It will cause impotency. Yeah. So Okay. rock salt. Okay, rock salt is also, but sea salt is better for this. But you may use that also. Okay. Got it. Then drink water. That's very important. Yeah. Drink enough water. This chutney has to be had for ever. How long? Continue it. Very tasty. Tasty. Good for your children, grandma, grandfather. Okay. And drinking water. Yeah. That you have to give more importance. If you don't get good water, drink fruit juice, carrot and beetroot, that type of vegetable juice, coconut water. Ash gourd juice is also Ash good. gourd, the tube light inside the banana tree, banana trunk. Banana stem. Excellent, excellent to cure even cancer. Wow. But you have to get without fluoride and other chemicals, pesticides. Oh, that stuff. Thank you so much. Thank you. बेजल मराया जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं आप. Okay. I'm happy to have another session, especially for human feed and your questions. Okay, please. Hello. Yes. Yeah. Thank you, Dr. Jacob. You have enlightened us a lot. And in fact, I'm also following whatever is to be followed according to the naturopath. And I'm happy to know the certain diseases and other things that can be cured through naturopath. And only request is to Daryl sir is that if you could manage Dr. B.M. Hegde for some session, that would have been very, very nice, because he also speaks a lot about all this. Daryl sir? Yes, Basil, thank you for that suggestion. We will try to get Dr. B.M. Hegde. Yeah, that's good. Really good. Yeah. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Okay, may I leave? Yes, okay, doctor. So you have your session. Thank you so much for attending and for giving us this lecture and the details about this very important, aspect of informed consent and exposing WHO and this patient safety day and all its norms. Dr. Abhay, would you like to add something? Yeah. So I think what Dr. Jacob stands for is the real fundas of health, and the very natural way of becoming health is much easier, much surer,
rather than going after the bad rush for the medications, unmindful medications. And so, in fact, Mahatma Gandhi wanted to have a naturopathy as the official system of treatment in India, and the name of the god, Ram Nam. So these two were the mode of treatment advocated by Mahatma Gandhi for India. But unfortunately, allopathy system entered, percolated like a cancer itself. And if only by patient awareness that what all this can do havoc to the system, the health, that one can be really safe. One can be really safe. So thank you, Dr. Jacob. We would like to have one more sessions from you somewhere. In fact, we can have a whole month of patient safety month. Why one day? Yes, Whole month yes. of safety day, Yes. patient safety month, and we can make people be healthy just by attending the sessions. You want it to be on a more wider platform, more people know about it. Thank you, sir. Thank you, Dr. Abhay and Dr. Dai. Thank Yes, you. Thank you. thank you, Thank you Dr. so much. Thank you so Jacob. much. So we will continue the session talking for a few more minutes about this topic. But yes, you may leave now to continue with your other session. Thank you, Dr. Okay. Jacob. Thank you. Bye. तो साथियों और एक कुछ मिनटों के लिए डॉक्टर अभय से बात करते हैं और कुछ और भी आपके सवाल रहेंगे तो उसका जवाब दे सकते हैं हम। मैं एक चीज़ अभी बोलना चाहता हूँ, जो ये मॉडर्न मेडिसिन का जो रॉकफेलर मेडिसिन बोला जाता है, उनके मार्केटिंग और मैनिपुलेशन के बारे में तो डॉक्टर जेकब ने ये तो समझाया था कि जब भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है तभी वो आपको कॉन्ट्राइंडिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स भी दे सकता है। फिर वो सवाल आता है कि अगर ये मुझे साइड इफ़ेक्ट हो जाए तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? और फिर डॉक्टर जेकब ने जवाब दिया कि ऐसा बोला जाता है कि हर बार पेशेंट को, और मैं कल भी पूरा शाम को एक गोवा के सबसे बड़े जो है मेडिकल इंस्टीट्यूशन पे था, गोवा मेडिकल कॉलेज। वहाँ पे क्योंकि ट्रेनिंग मिलता है इंटर्न्स को, डॉक्टर्स को, जो नए डॉक्टर्स हैं, तो ट्रीटमेंट्स वहाँ पे फ्री है। तो पब्लिक जो है लोअर इनकम का, लेबरर्स, वर्कर्स, वो भर भर के आते हैं वहाँ पे। तो मैं कल पूरा शाम, मेरे एक दोस्त थे जो इमरजेंसी में गए, तो मैंने पूरा वो देखा था। हालांकि मैं वो हॉस्पिटल काफ़ी बार गया हूँ कोई ना कोई पेशेंट के लिए मदद करने के लिए। तो एक मैं एग्जाम्पल अभी दूंगा आपको। मेरे जो सामने घर में रहते हैं वो मेरे दोस्त, उनका ये सिचुएशन था कि बचपन में उनको सर दर्द होता था, माइग्रेन जैसा। तो पहला उनको वो डॉक्टर ने उनको सैराडोन दिया था, फिर उसके बाद अलग मेडिसिन, फिर अलग मेडिसिन, 6 साल के बाद, और हेडेक हर हफ्ते में 1 या 2 बार। तो हफ्ते में तो 1 बार वो मेडिसिन लेता था, और 6 साल के बाद उनका दोनों किडनी फेल हो गया। अभी वो पिछले 5 साल से डायलिसिस पे है। तो ये क्या होता है, जब भी शायद पहले बार वो डॉक्टर के पास गया होगा और अगर उसने पूछा होगा डॉक्टर को कि इसका क्या कोई साइड इफेक्ट होता है, तो डॉक्टर ने शायद बोला होगा हाँ साइड इफेक्ट होता है, आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो, कंपनी को पूछ सकते हो। इसमें बताया जाता है कि इट इज़ पॉसिबल कि आपके किडनीज को लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन पेशेंट सामने बैठता है और डॉक्टर उसको क्या बोलता है कि आपको आज आपका हेडेक ठीक करना है, कोई दूसरा ऑप्शन है तो ले लो, अगर आपको यही ऑप्शन बाकी रह गया है तो आज कल जो हेडेक है आपको ठीक करना है तो ये लेना ही पड़ेगा। 5-6 साल के बाद आपके कुछ किडनी को खराब होगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन तो इस जाल में डॉक्टर्स फंसा देते हैं, मतलब बेनिफिट वेज द आउटवेज द नेगेटिव रिस्क एंड आउटकम। तो अभी मुझे लगता है कि ये जो पूरा मूवमेंट हम करने जाएंगे, इन्फॉर्म कंसेंट, सभी लोगों को बताने के लिए, पूछने के लिए,
उसका ये फायदा हो सकता है कि सामने से ही पेशेंट को ही पता चले। देखो, मैं हेडेक्स के लिए अगर मैं टैबलेट लेता ही रहूंगा तो मेरे किडनीज और कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, वो सब तो होने वाला है लॉन्ग टर्म में। तो शायद ये सही मार्ग नहीं है। मतलब शायद सबसे अच्छा है कि एलोपैथी दवाई ना ले हम, तो फिर उनका दिमाग खुलता है तो और कौन सा ऑप्शन है। तो और जैसे ऑप्शन उदाहरण एक डॉक्टर जेकब ने दिया था, वो जो चटनी बनाने का, तो फिर लोग ज्यादातर नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, इसमें सब आएंगे। तो डॉक्टर अभय, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? बिल्कुल। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है नेचुरोपैथी, दैट्स व्हाट वी मस्ट से। पेशेंट खुद की लाइफस्टाइल सुधार दे, कैसे जीना है, कैसे रहना है, वो निश्चित करे। कैसे मतलब एक जीसस का स्टेटमेंट भी है न्यू टेस्टामेंट में, that one shall not live by bread alone but by every word that proceedeth from the mouth of God। मतलब एक डिवाइन लाइफ जीनी है, और जैसे डिवाइन लाइफ में हम जाते हैं, उसके नाउंसेस लेते हैं, तो हेल्थ अपने आप आने लगती है और हम तंदुरुस्त रहते हैं, इलनेस प्रिवेंट होती है। सो फर्स्ट ये होना चाहिए। बाद में, इसके बाद में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक पे जाना चाहिए। सीधा वे ऑफ ट्रीटमेंट भी नेचुरोपैथी जैसा ही है, तो वो सब पहले करना चाहिए। जब भी पेशेंट मशीनिक हो जाए, मशीन जैसा हो जाए, तभी आप एलोपैथी में जा सकते हो। मैं एलोपैथी को ज्यादा एक मशीनिक मेडिसिन कहता हूं कि जब भी मशीन जैसा आदमी हो गया तो यस, मशीन जैसी ट्रीटमेंट उसको दो। लेकिन आदमी को वो मशीन जैसे ट्रीटमेंट अगर कंटिन्यूस रखेंगे तो नुकसान, तो धोखा है। तो टेम्पररी वो ठीक है जब भी वो आदमी मशीन जैसा हो गया हो तभी, नॉट अदरवाइज। अदरवाइज तो जो डायनामिक ट्रीटमेंट है, नॉन मशीनिक ट्रीटमेंट है, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सिद्धा, ये सब में जाना चाहिए ज्यादा। और कम से कम चीजें इस्तेमाल करें, कम से कम दवाइयां इस्तेमाल करें, दवाइयां ना इस्तेमाल करें, वो सबसे बढ़िया फिलोसॉफी है। अपनी लाइफ स्टाइल, कहां से कॉज है, बीमारी का कॉज पकड़ के कॉज पे अटैक करें। तो एक जो डिक्टम है, सिजेट कॉजा सिजेट इफेक्टस, मतलब अगर आप कॉज खत्म करो तो बीमारी गिर जाती है। तो ये बहुत एज ओल्ड डिक्टम है, हिपोक्रेटिस ने कॉइन किया है, फादर ऑफ मेडिसिन। जो है सब सब ट्रीटमेंट के विश्व पितामह हिपोक्रेटिस, उनका ये स्टेटमेंट है, सिजेट कॉजा सिजेट इफेक्टस। मतलब आप कॉज को खत्म करो, शरीर में इतनी शक्ति है कि बीमारी खत्म हो जाती है। तो सबसे बढ़िया स्टेटमेंट है। आई थिंक बहुत सारी जानकारी दी गई है, और आई थिंक अपने जो रेगुलर अटेंडेंट है वो तो काफी कुछ इससे बेनिफिट लेते हैं। लेकिन अगर और ज्यादा लोग ये सब बात, अपनी जो काम की बात में जुड़े, तो और भी लोगों को बेनिफिट मिल सकता है कंटिन्यूअसली। यस डॉक्टर डेरिल। जी हाँ डॉक्टर अभय। और तो इसमें इस पॉइंट पे ऐसा समझना है कि हमें हर हर बार जो हमें एलोपैथी प्रिस्क्राइब होता है तभी हम ये एक्टिवेट करें इनफॉर्म कंसेंट डॉक्टर को पूछने के लिए। क्योंकि ये तो आप अभी जान गए हैं, जैसे अवेकन इंडिया मूवमेंट में ने वैक्सीन्स के लिए वो पूरा इनफॉर्म कंसेंट का डॉक्यूमेंट बनाया था जो हम स्कूल्स को दे रहे थे। तो जिन जिन पेरेंट्स के पास वो इन्फॉर्म कंसेंट पहुंचा, उसमें सब वैक्सीन्स के साइड इफेक्ट्स थे और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। और साइड इफेक्ट्स में 100 से ज़्यादा, आप जिन्होंने यहाँ पे आज जो है या जो ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, अगर आपने वो डॉक्यूमेंट नहीं देखा है तो कृपया वो डॉक्यूमेंट देखिए। वो डॉक्यूमेंट अवेकन इंडिया मूवमेंट के वेबसाइट पे है, इम्पॉर्टेंट लेटर्स में, क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट का नाम है इन्फॉर्म कंसेंट टू स्कूल्स। तो जिन पेरेंट्स ने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा, उसी समय पे उन्होंने बताया, नहीं बाबा, मैं ये वैक्सीन अपने बच्चे को कभी भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उसमें साइड इफेक्ट, एक डेथ भी है और बाकी 100 साइड इफेक्ट्स है। तो ऐसा ही मतलब रिजल्ट हमको बाकी चीजों में भी चाहिए कि जो हम लोगों को अवेयरनेस करेंगे तो लोगों का कंक्लूजन यही होना चाहिए कि भाई ये सब साइड इफेक्ट्स अगर ये टैबलेट का है या ये इंजेक्शन का है तो हम इसको नहीं लेंगे। तो फिर लोग ऑल्टरनेटिव
जो है मेडिसिन और नेचुरल मेडिसिन की तरफ आएंगे। तो ये वो जो मैंने बताया था, गोवा मेडिकल कॉलेज में मेरे जो फ्रेंड थे इमरजेंसी में कल पहुंचे, लेकिन एक हफ्ते पहले भी पहुंचे थे, उनका गलत डायग्नोसिस हुआ था। जो डॉक्टर जेकब ने आज बात की, गलत डायग्नोसिस मलेरिया का हुआ था, उसके बाद दूसरा दिन डेंगू का हुआ था, और फिर उनको वो मेडिकेशन मलेरिया का कुछ दिया गया था, उसके वजह से साइड इफेक्ट्स हो गया, हेडेक और गिडीनेस, फेंटिंग, वो सब। तो उसको फिर लास्ट में सिर्फ फेरिंजाइटिस, मतलब ब्रोंकियल कॉफ और फेरिंजाइटिस का लास्ट में कुछ मेडिकेशन दिया गया था। तो इसमें एलोपैथी में बहुत ही खतरा है जब भी मिस डायग्नोसिस होता है और रॉन्ग मेडिकेशंस मिलता है पेशेंट्स को। और मैं और एक भी चीज़ आज जोड़ना चाहता हूँ कि जब बात हुआ था कि लोग जो है खुद के मिस्टेक से भी बीमार पड़ते हैं, मतलब ज़्यादा प्रोसेस फूड्स, अनहेल्दी हैबिट्स, उसमें मैं एक जोड़ना चाहता हूँ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का सबसे प्राइम रूट कॉज एक वजह है, वो है वैक्सीनेशंस जो चाइल्डहुड से होता है। अभी दुनिया भर में ये पता चल गया है कि चाइल्ड वैक्सीनेशन से ऑटिज्म होता है। और इतने जो जो वो हमें दिया जाता है ना बचपन में, इतने 4, 5, 6, 7, 8, मतलब अभी यूएसए में तो 30-40 से ज़्यादा मिलता है बच्चों को, जैसे वो टीनेज और एडल्ट हो जाते हैं। तो ये वैक्सीन्स एक रूट कॉज है बाद में लाइफ में, बाद में हमें अलग अलग ऑटो इम्यून डिजीजेस और सिकनेस, और हमारा इम्यूनिटी जो है वो कम होता है। तो ये और एक वजह मैं जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे सब बीमारियों का जो रीजन है। डॉक्टर अभय, आप इस पे कुछ बोलेंगे? बिल्कुल। तो ये जो वैक्सीनेशन है वो तो कंप्लीटली अनसाइंटिफिक, कंप्लीटली घातक है, और अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल गया है। यूनेस्को का कहना है कि अभी वैक्सीन की पॉपुलैरिटी 40% पे आ गई है, तो बहुत अच्छी बात है। ये वैक्सीन का पूरा बिजनेस ही बंद होना चाहिए, पूरा अनएथिकल है ये पूरा वैक्सीनेशन। एक 420 ये धोखाधड़ी है, बहुत सारे केमिकल का ये कॉम्प्लेक्स पॉइजनस टॉक्सिक मिक्सचर है और ब्लाइंडली दिया जाता है। बहुत सारे पीडियाट्रिशियन ने वीडियो निकाले हैं कि हमने 20-20 साल तक वैक्सीन दिए और हमको पता नहीं था कि इसमें मर्क्यूरी है, क्योंकि मर्क्यूरी का नाम थिमेरोसोल करके लिखा गया था, जो किसी ने देखा नहीं कि थिमेरोसोल में मर्क्यूरी है। तो डॉक्टर को पता चला 20 साल के बाद कि मैं थिमेरोसोल मर्क्यूरी घुसा रहा हूँ पेशेंट के बच्चों में, तो वो शॉक में आ गए, उन्होंने पूरा प्रैक्टिस बंद कर दिया वैक्सीनेशन का। तो ऐसे वैक्सीनेशन जो है सबसे घटिया प्रैक्टिस है, उसका पूरे वर्ल्ड में से इस पूरी प्रैक्टिस निकल जानी चाहिए। और जो भी अपने जो राष्ट्रीय वैक्सीनेशन के ऊपर वेस्ट की जाती है, पूरी रिकॉल करके कोई अच्छी प्रोजेक्ट में डालनी चाहिए, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग या पेशेंट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ। ऐसी सिस्टम में ये राशि डालनी चाहिए, उससे इनफैक्ट वाकई अच्छी हेल्थ आएगी। और ये जो एलोपैथिक सिस्टम, मॉडर्न मेडिसिन, जो एमबीबीएस सिलेबस है, बीएचएमएस, ये सब सिलेबस है, सिलेबस बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम आया है कि ये पूरा जो एमबीबीएस या जो भी प्रैक्टिस करता है एलोपैथी, वो पूरे हैक हो चुके हैं फार्मा माफिया से। तो ये इनको खुद को रियलाइज हो कि इनको इनकी चुंगल में से बाहर लाना है। तो अगर हम एज ए पेशेंट हर एक डॉक्टर को पूछे इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसके क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो धीरे धीरे हम वो डॉक्टर को चुंगल में से बाहर ला सकते हैं। और ये सेम डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर्स खुद बाकी उनका बरकरार रख के नेचुरोपैथिक वेज या होम्योपैथिक वेज सीख के, आयुर्वेदिक वेज सीख के पेशेंट को वो दे, तो और भी बेहतर हेल्प दे सकते हैं। कम से कम दवाइयां ना, दवाइयां वो फिलोसॉफी अपनाए। अभी आप देखेंगे एक प्रिस्क्रिप्शन, एक डॉक्टर पेशेंट जाता है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे प्रिस्क्रिप्शन होता है, और इतना डब्बा लेके घूमता है ऑल द टाइम। अभी मेरे पास ये लास्ट 2-3 महीने में ऐसे पेशेंट्स हैं कि वो 12-12, 13 टैबलेट खा रहे थे और
डाउन जा रहे थे, अभी जाएंगे ये कभी भी मर सकते हैं। अभी इनका दवाई एक साथ बंद कर दिया मैंने, और वो व्यक्ति ठीक होने लगा। 2 हफ्ते में देखा और बेटर हो गया, और 2 हफ्ते में देखा और बेटर हो गया। ऐसे अभी 2, 3, 4, 5 महीने हो गए और ये बेटर 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 होने लगा। मतलब ये क्लियर प्रूफ है कि ये जो दवाइयां से ही वो बीमार हो रहा था, जब ये दवाइयां बंद की सब एक साथ, तो पेशेंट के रिलेटिव ने कहा कि किसी कुछ होगा तो नहीं, नुकसान तो नहीं होगा, दवाइयां बंद कर रहे। बोला ये ऑलरेडी जो नुकसान होना था ये हो चुका है ऑलरेडी, ये आदमी जा रहा है नीचे, और ये दवाई के कारण जा रहा है। अगर आप दवाई बंद कर दोगे तो उसकी नेचुरल ताकत बहुत अच्छी है, वो वापस ऊपर आएगा। और ऐसा होने लगा, और ऐसा एक नहीं बहुत सारे केस में ऐसा होता है। तो मैंने आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में एक डाला है, डॉक्टर रॉबर्ट मेंडलसन का एक पैराग्राफ है कि अगर आप 90% मेडिकेशन, इक्विपमेंट्स, ड्रग्स, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ये सबको आप खत्म कर दो, इतने मात्र से आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, बहुत बढ़िया पैराग्राफ है, जो मैंने टाइम एंड अगेन वेरीफाई किया है। बाद में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ये बीमारी कैसे आती है, कैसे बढ़ती है और कैसे कम होती है, उसका एक चार्ट दिया है 2 पेज का। वो चार्ट आप स्टडी करेंगे, और स्टडी मात्र से ही हेल्थ ठीक होने लगेगी, इतना शरीर में ताकत है। तो दूसरा जो बुखार है, बुखार तो एक ब्लेसिंग है। जब भी कुछ अपने को अंदर डिटॉक्स करना है तो बुखार आता है, और बुखार के दरमियान बहुत सारी चीज डिटॉक्स होती है। इवन कैंसर के कोशिश, जो कैंसर के जो सेल्स है वो भी खत्म होने लगते हैं। तो बुखार को दुश्मन नहीं दोस्त समझ के बुखार को रहने देना चाहिए, बुखार को खत्म नहीं करना चाहिए, बुखार को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। जैसे डॉक्टर जैकब ने बताया कि भाई कॉज पे अटैक करो, कॉज पे अटैक करो, उसकी इफेक्ट पे अटैक मत करो। प्रॉब्लम यहाँ एलोपैथी में हो रहा है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफिशियली दी जाती है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मतलब इफेक्ट पे अटैक करना। तो आप एक सिम्टम बंद करोगे तो दूसरा पैदा होगा, दूसरा करोगे तीसरा पैदा होगा। जैसे कि एक बीमारी, बकरी नाम की बीमारी हटाओगे तो ऊंट घुसेगा, ऊंट नाम की बीमारी घुसाओगे तो हाथी घुसेगा। तो ये ऐसी ट्रीटमेंट है। तो अगर आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करोगे तो ये नतीजा होने वाला है, बीमारियां बढ़ने वाली है। बीमारियां कम होनी चाहिए। गोल ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ये होना चाहिए कि भाई एक से जैसा आना चाहिए कि हम कुछ भी चीज बिना हम तंदुरुस्त है। अगर ऐसा है तो डॉक्टर सही है, वो ट्रीटमेंट सही है। आई थिंक डॉक्टर डेरिल, हमने बहुत कुछ कहा है, और कुछ आपको कुछ याद आता है? जी हाँ, लास्ट में एक और एक चीज़ मैं बताऊंगा सभी को वैक्सीन्स के बारे में। तो आप गूगल कर सकते हैं हेनरी किसिंजर रिपोर्ट 1974। तब से वैक्सीन्स, मतलब ये यूएस गवर्नमेंट का पॉलिसी बन गया था। ये जो अमेरिकन्स हैं, वो रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली वैक्सीन्स डिज़ाइन किए गए हैं पॉपुलेशन घटाने के लिए, लोगों को इनफर्टाइल करने के लिए। और ये था उनके जो यूजेनेसिस्ट थे और उनका प्लान्ड पेरेंटहुड का जो प्रोग्राम था उससे अलाइन करने के लिए। प्लान्ड पेरेंटहुड मतलब ऐसा सब करना है कि पॉपुलेशन घटाया जाए। और वो रिपोर्ट में ये भी डिटेल्स है कि कौन से देशों का पॉपुलेशन घटाना है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, इंडिया का, साउथ अफ्रीका, और बाकी भी सब आपको मिलेंगे वहाँ पे। ये तो हम जानते हैं कि जहाँ पे ज़मीन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगा। ज़मीन यूएसए में बहुत कम है, लेकिन ये सब लोग उल्टा पुल्टा कर रहे हैं और बाकी जो है देशों को घटाते हैं और अपने लोगों को बचा के रखते हैं। तो वो ज़रा आप ज़रूर वो रिपोर्ट पढ़िए। और ये वैक्सीन डिपॉपुलेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये सिर्फ बिल गेट्स के 2018 के टेडेक्स टॉक की बात नहीं है, ये तो 1974 से चल रहा है। और किसी के पास और कोई सवाल है तो आप पूछिए, क्योंकि अभी कुछ 10 मिनट में हम सेशन समाप्त करेंगे। तो किसिंजर रिपोर्ट तो बहुत ही खतरनाक है। ये 1974 में अमेरिकन यूएस फॉरेन पॉलिसी करके ये रिपोर्ट बनाया गया था, जिसमें ये पब्लिश भी हो चुका है। आप विकिपीडिया में इसको देख सकते हैं। मैं इनफैक्ट टेलीग्राम में वो पेजेस भी डालता हूँ पीडीएफ, कि ये किसिंजर रिपोर्ट के हिसाब से 13 देश में बिल्कुल बच्चे पैदा ही नहीं होने चाहिए, और 13 देशों में भारत नंबर 1 पे है। यहाँ बच्चे ही पैदा नहीं होने चाहिए। यहाँ एक बच्चा पैदा होता है तो यूएसए में सिक्योरिटी थ्रेट मानी जाती है, ऐसा क्लियर कट ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा गया है। और लिखा गया है
कि जैसे यहाँ बच्चे पैदा होंगे, हमको यहाँ से सस्ते में रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने नहीं मिलेंगे। तो मतलब इतनी घटिया मेंटालिटी वाले लोगों को हम डेवलप कंट्री बोलेंगे। भले लोग अच्छे होंगे, लेकिन ये जो इनके जो राजकारणी जो लोग हैं, वो तो बड़ी ही खतरनाक और कुंठित बुद्धि के हैं। तो अ, ये आइडियोलॉजी के तहत ये वैक्सीन में ऐसी कुछ घातक दवाई डाल दो कि आदमी मर जाए, इनफर्टाइल हो जाए, इनका एक प्रोग्राम ही है। और सब बाजू ये फैलाते हैं ये टाइप का। और ये इनफैक्ट कोई देश के नहीं है, ये सब बाजू घातकता फैलाते हैं। ये टाइप के माइंडसेट है। तो इनको लगता है कि ये हमारी जो ब्लड लाइन है यही पृथ्वी की दावेदार है, बाकी सबको जीने का हक ही नहीं है। इनफैक्ट खुला वीडियो इनका है। एक नोवेल युवल नोआ हरारी, इनका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एडवाइजर है, उनके चेयरमैन के एडवाइजर है, उनका तो खुला वीडियोस है कि ये साउथ एशियन अफ्रीकन इनका क्या वजूद है। चलो इनको खाना दे देंगे, चलो इनको ड्रग पे चढ़ा देंगे, चलो इनको गेम्स पे चढ़ा देंगे, ऐसी बात करता है वो सीधा। तो मतलब ये तो खुला खुला बोल के भी करते हैं। अभी हमको रियलाइज होना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, और इनकी चुंगल में से हमको बाहर आना चाहिए। सो जो WHO, क्विट WHO फ्रॉम इंडिया, क्विट बिल गेट्स फ्रॉम इंडिया, ये हमारा बहुत स्ट्रांग मुहिम होना चाहिए, बिकॉज ये बेसिक कल्प्रिट है। इनकी हर एक एक्शन उलटबासी होती है। बचाने के बाद से वो इनफैक्ट मारने का देखते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। जी डॉक्टर अभय, और अभी मैं डॉक्टर NP यादव को बोलूंगा अपना सवाल रखने के लिए। डॉक्टर NP यादव। अभय सर नमस्कार आपको। नमस्कार। आपसे बॉम्बे में मुलाकात हुई थी, अमेरिकन इंडिया मूवमेंट का चला था प्रोग्राम। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं ये चाह रहा था कि जो हम लोग बेस बताएं, कि मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था। जो हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताएं, मॉडर्न मेडिसिन का जो बेस है वो लुईस पास्चर का जर्म थ्योरी है। वो थ्योरी ही है, क्योंकि वो थ्योरी कीटाणु बेस चलती है, जर्म बेस चलती है, और हमारा जो नेचर क्योर सिस्टम है वो टॉक्सिन बेस चलता है। तो सबसे पहला जो बेसिक फाउंडेशन है वो हम लोग इसको भी ऐड कर ले, ताकि आम पब्लिक को समझ में जल्दी आए। दूसरा, हम ये कहें कि जो पूरे वर्ल्ड में सबसे नेचर के डॉक्टर अब बचे हैं, मतलब हैं इस समय करंट सिचुएशन में, वो ओनली वन है, डॉक्टर अरुण शर्मा। उनको हम एक बार बुलाए तो बहुत सी चीजें हमें कहेंगी कि कच्चा खाना पक्का खाना कैसे नहीं करना चाहिए, और भी वो क्रिटिकल केस है, क्रिटिकल केस को वो कैसे हैंडल करते हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली एक 2 साल की बच्ची को क्रिटिकल केस हैंडल किया, जिसको कोई सिंड्रोम डिजीज हो गई थी, और वो बैक पेन से उठ नहीं पा रही थी, कमर उसका मूव नहीं, और वो उन्होंने अरुण शर्मा जी की केवल एक नॉर्मल एक थेरेपी से, मसाज से, और वो 52 दिन में 100% क्योर हो गई। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अरुण शर्मा को एक बार बुलाएं, जिससे वो नॉलेज मिले। तीसरा जो मुझे कहना है डॉक्टर अभय जी के बारे में, इन्होंने कोरोना काल में बहुत मदद की, जितने बड़े स्तर पे मदद की, सर्टिफिकेट दे दे के, वो मैं इनका आभारी हूँ। हमारे ग्रुप में भी है, भारत जगह में बहुत मदद की इन्होंने। धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। शुक्रिया। वो ऐसा काल था कि किसी को 1 मिनट भी बंदी अवस्था में मैं देख नहीं पाता था। इसकी मूवमेंट क्यों रोकी गई, ये इसको बंदिस्त क्यों बनाया गया। तो वो इसकी मूवमेंट, उसका फ्रीडम 1 मिनट के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। वो भावना से हमने वो टाइम पे सर्टिफिकेट दिए सबको। और पूरे भारत भर में और कुछ विदेश में 5000+ लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए। और तभी वो देने के टाइम पे हम कुछ दिनों तक तो डे नाइट भी काम करते थे, लेकिन वो टाइम पे हमारी खुद की तबीयत बहुत अच्छी हो गई थी। तो ये एक जो आप बाहर स्पंदन देखते हो, वो आपके ऊपर ही आता है लौट के। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड बैक टू यू। सो आई थिंक शुक्रिया आपका भी। और कोई प्रश्न है तो पूछिए प्लीज।
जी हाँ, करुणा जी। करुणा जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हाँ, सभी को नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, यस। हाँ, मुझे डॉक्टर अभय जी से मुझे एक प्रश्न पूछना है। जैसे अभी उन्होंने बताया कि बुखार जो है वो हमारा मित्र है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बहुत ही ज्यादा बुखार हो जाता है, 103, 104, 5, 6 तक चले जाता है। तो फिर तब क्या करें? हाँ, क्योंकि फिर तो मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी ना, कुछ होम्योपैथी बोलिए या फिर आयुर्वेदिक, ऐसा कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। देखिए, यही मैं पूछ रही थी। मैं जवाब देता हूँ। तो बुखार का पहले तो डर निकालिए। 102, 3, 4, 5, 6 डिग्री हो, 7 डिग्री हो, 8 डिग्री हो, उसका डर निकाल दीजिए पहले। बॉडी ने डिसाइड किया है कि मुझे बुखार पैदा करना है, बॉडी खुद बुखार पैदा करता है। बॉडी को खुद की रक्षा करना बराबर मालूम है, बॉडी की इंटेलिजेंस बहुत है। तो बॉडी खुद बुखार पैदा करता है। ऐसा कोई भी जो अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं तो बॉडी उसको डिटॉक्स करने के लिए बुखार पैदा करता है अभी। तो और दूसरा जो है कि कोई भी कारण से जर्म्स अंदर घुसे हो और अगर वो पैथोजेनिक हो, अभी वायरस है फॉर एग्जांपल, तो 102 डिग्री ऊपर का बुखार जरूरी है और उससे ही वो खत्म होने लगते हैं। तो ये एक समझो इन्फेक्शन की बात कहें तो। और इन जनरल बुखार के टाइम पे बॉडी कैंसर सेल्स को खत्म करता है। जितने अंदर अंदर टॉक्सिन जमा हुए हैं, हम सब्जी या पल्सेस खाते हैं, उसके माध्यम से जो टॉक्सिन जमा हुए हैं पेस्टिसाइड्स के, वो भी बुखार के टाइम पे बॉडी डिटॉक्स करता है। जो भी दूध के माध्यम से कुछ चीनो एस्ट्रोजन घुसे होते हैं बॉडी में, वो भी बुखार के टाइम पे बॉडी डिटॉक्स करता है। कैंसर के सेल्स हमारे में रोज पनपते हैं और बॉडी खुद की इम्यूनिटी उसको खत्म करता है और बुखार के टाइम पे स्पेशली वो कैंसर को हुक आउट कर देता है। ऑस्ट्रिया में एक मशीन है 2.5 लाख का, जो बुखार प्रोड्यूस करने के लिए मशीन बनाया गया है और वो मशीन का यूज कैंसर पेशेंट्स में, संधिवात के पेशेंट्स में खास किया जाता है। तो जब अगर बुखार आता है, बुखार बनता है, तो बुखार को टारगेट मत कीजिए। बुखार एक इंडिकेटर हो सकता है कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन उसको टारगेट नहीं करना चाहिए। टारगेट जो कॉज है, तो कॉज को टारगेट करना चाहिए। जो कॉज है, मनस्थिति खराब हो गई या बॉडी में टॉक्सिन जमा हो गए, मनस्थिति खराब होने के कारण टॉक्सिन उत्पन्न हो गए, डिटॉक्स करना है और वो कॉज को पकड़ना है, कॉज को खत्म करना है। जैसे कॉज को खत्म किया, बॉडी में साफ सफाई हो गई, बुखार की जरूरत नहीं होती और बॉडी बुखार बंद कर देता है। तो ये जो बुखार को शत्रु समझना, वो ही खराब है। बुखार मित्र है। मैंने पेशेंट्स ट्रीट किए 106, 107, 108 डिग्री के विदाउट क्रोसिन मेटासिन और बहुत अच्छे रीत से वो ठीक होते हैं। हिपोक्रेटिस का कहना है, जो फादर ऑफ मेडिसिन है, कि गिव मी अ पावर टू प्रोड्यूस एंड आई शैल क्योर एनी डिजीज। मतलब कि मुझे बुखार पैदा करने की ताकत दो, कीमिया दो, तो मैं कोई भी बीमारी खत्म कर सकता हूं। इतनी बड़ी बात हिपोक्रेटिस ने कही है। तो सालों साल से जो हमने बुखार का डर पाला है, पोसा है, यहां वहां से अंदर घुसा है, उसको खत्म कर देना चाहिए। बुखार को मित्र मानना चाहिए, शत्रु कदई नहीं मानना चाहिए। तो ये एक मैसेज आप खुद भी लो और सबको पहुंचाओ। सब डर निकाल दो। टारगेट बुखार को नहीं करना है, टारगेट कॉज को करना है। और जो कहते हैं कि बुखार के कारण फिट्स आ गई, वो भी गलत बहती है। जैसे शब्द है फेब्राइल कन्वर्जन, तो शब्द भी गलत है। अगर हम कहेंगे फेब्राइल कन्वर्जन, तो हमको लगता है कि बुखार के कारण कन्वर्जन आए, फिट आई, लेकिन ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव रिलेशन नहीं है। कोई कारण से बुखार आया और वही कारण से फिट आई, दोनों चीजें साथ साथ में चलती थी। बुखार के कारण फिट है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बुखार हम डाउन करेंगे फिर भी उसको फिट आती है, फिर भी उसको कन्वर्जन आने वाले होते तो आते हैं। मतलब बुखार उसका पॉजिटिव फैक्टर नहीं हुआ। सो जब भी एक्सट्रीम, जैसे सनस्ट्रोक हो, एक्सट्रीम हीट हो, एक्सट्रीम सनस्ट्रोक हो, उससे बॉडी हीट हो गई, उसको कूल करना है। या ब्रेन को एक्सीडेंट में डैमेज हो चुका है और उससे फीवर आया है, तो वो समझो डैमेज कर, तो ब्रेन के डैमेज को ट्रीट करना है इसमें। लेकिन किधर भी बुखार को डाउन नहीं करना
सो मेजॉरिटी जो हमारे बुखार है, हम क्रोसिन मेडिसिन डाउन कर दें, वहां से बीमारियां हम बढ़ाते हैं। क्रोसिन लोगों को लगता है सेफ है, इफेक्टिव है, सेफ है, लेकिन एकदम गलत फहमी है। जैसे आप डॉक्टर जेकब ने बताया कि इवन ब्लड, लीवर, बोन मैरो कैंसर्स, लिम्फेटिक कैंसर्स उससे होते हैं। तो मतलब बुखार फायदे कारक है, बुखार की ट्रीटमेंट गलत है। यस, और कोई सवाल? नहीं, ऐसा भी जैसे मुझे एक प्रश्न और पूछना है कि जैसे अगर बहुत ज्यादा अगर बुखार रहा तो वो दिमाग में चले जाता है और मृत्यु हो जाती है, ये मैंने देखा है ऐसे। ये गलत फहमी तो है, ये दिमाग में चढ़ गया, मृत्यु हो गई, ये गलत फहमी है। आपको मैं एक बुखार के ऊपर डिटेल में एक पीडीएफ भेजता हूँ, जो मैंने एक लिखा है। तो उसमें ये बुखार सर पे चढ़ गया और मृत्यु हो गई, वो तो एकदम सरासर गलत बात है। बुखार से डिलीरियम हो गया, वो भी गलत बात है। बुखार का इन जनरल रोल है डिटॉक्स करना। तो कॉज पे अटैक करो, क्या ऐसी चीज हुई थी वो व्यक्ति की घटना में, लाइफ में, कि उसको गहरा असर पड़ा है, वो कॉज को पकड़ करो। पेशेंट से ढंग से बात किया, उसको बिठा के आराम से चर्चा की, बात की, विचारों की आपले की, पेशेंट के अंदर क्या है, वो पेशेंट बोलने लगा, डॉक्टर उसके ऊपर सुनने लगा। ऐसे करके ही अंदर से चीज चला जाती है। और ये मेरी आज जो 25 साल प्लस की प्रैक्टिस में कभी भी एक भी केस ऐसा नहीं हुआ कि जहां बुखार सर पे चढ़ गया। ये गलत मान्यता है, उसमें से बाहर आना जरूरी है। जैसे इवन न्यूज़पेपर में भी अभी जापानिक एन्सेफेलाइटिस यूपी में बहुत होते थे, और उसमें फीवर आता था और मृत्यु हो जाती थी, तो हेडलाइन आती थी पेपर में, फीवर डेथ। ये सब गलत हेडलाइन है। गलत ट्रीटमेंट से डेथ हुई वो नहीं कहते हैं, लेकिन फीवर डेथ लिखा जाता है। तो इससे एक सामूहिक सम्मोहन हो गया है कि फीवर खतरनाक है, फीवर हार्मफुल है। मतलब जो बचाने आता है, जो मित्र है, उसको हम शत्रु समझने लगते हैं। तो इस गलत फहमी से बाहर आना बिल्कुल जरूरी है। यस। इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा था कि अगर आप 100 ml घर के पानी का वाटर एनीमा कर देंगे सुबह, तो बुखार उतर जाता है थोड़ी देर बाद। तो जब भी आपको फीवर है, फोर्स नहीं करना है, एक बार या 2 बार घड़े के पानी का एनीमा कर दें, फीवर उतर जाएगा। धन्यवाद। हेलो। हाँ, यस। हेलो। हाँ, बोलिए। मैंने ग्रुप में डाल भी दिया है ये हिपोक्रेट जो बोला है उसके बारे। क्योर समटाइम्स, ट्रीट ऑफन, कंफर्ट ऑलवेज। क्योर समटाइम्स, treat often, and comfort always. That's what Hippocrates has said about treatment. Just I wanted to share it only. ओके, यस। और कुछ सवाल? डॉक्टर अभय, और किसी का भी सवाल नहीं है तो हम आज सेशन यहाँ पे समाप्त कर देंगे। आपका भी बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभय, आज के सेशन होस्ट करने के लिए। और आपका जो काफी इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उसमें से हम सभी को गाइड करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। जी, धन्यवाद जी। और साथियों, मैं इस रिकॉर्डिंग अभी 5 मिनट में अपना जो ग्रुप है ऑफिशियल डिस्कशन एआईएम ग्रुप, उसमें डाल दूंगा। और फिर अगले संडे फिर से जुड़े रहिए हमारे साथ 11 बजे काम की बात पे। धन्यवाद सभी को। हैव अ गुड डे। बाय। थैंक यू। Thank you.